जय हिंद स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया एग्जाम गया हुआ आप लोग का। जिसने जैसी मेहनत की वैसा उसका समय गुजरा होगा। चलिए, जो भी है, जो बीत गई वो बात चलेगी, भूल जाना उसको। अच्छा गया तो भी वेल डन, और अच्छा नहीं गया तो भी अगली बार के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। लेकिन एग्जाम आपका हुआ है, अब आपको उसको चेक करना जरूरी है। मुझे पता है आप बहुत से बच्चों के साथ पहले भी देख लिया होगा अलग चैनल्स पे, लेकिन हमने थोड़ा वक्त लिया है टाइम लेकर के, ताकि आप लोग रिलैक्स हो लें। बहुत से बच्चे दूर से भी थे तो सब घर पहुंच जाए, इसलिए हमने अभी का समय निर्धारित किया ताकि आप सभी को हम लोग प्रॉपर और सही आंसर की प्रोवाइड कर सके। स्टार्ट करें हम लोग, पहले जीएपी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप लोग बताते जाएंगे। आप लोग कोई प्रॉब्लम होती है, बीच में कोई डाउट्स होता है तो आप लाइव चैट कर सकते हैं, आपको उस पर रिप्लाई दिया जाएगा। समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग कार्रवाई करके बढ़ाते हैं। जय हिंद। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। हाँ, श्वेता मैम। So hello everybody, hope your NDA2 paper was well, went well, and I was very happy to see some of the questions were directly matched with our class, right? So today we are going to do a detailed discussion. Fine. Very first part was antonyms, okay, and it was somewhere moderate. Very first question is, all human beings are fallible. So fallible means a person who has a lot of, जिसके पास बहुत सारे दोष हो, who is not able to do the things well, okay, दोष हो, unclear हो, right? So the clear synonym of this word is frail. That means कमजोर, दोषपूर्ण, जिसको बहुत ही वीकनेस हो, राइट? मोर्टल, वैसा इंसान जो आगे तक चले ना, ओके, मोर्टल, इमोर्टल अमरणशील, मोर्टल मरणशील, must have known this. Erring means a person who makes a lot of error or who have a lot of errors in them. ठीक है? So these three things are clear synonym of the word. We've got only one answer, which is opposite. जिसके पास दोष है और जिसके पास कोई दोष नहीं है, that person is perfect. So our answer for the very first question is perfect, right? Sorry. Okay, so perfect option B is the correct answer. His words were vague. Vague means something which is unclear, which is not clear to you. Okay. Identical, option 1 is identical, which means एक जैसा, similar, right? Not a correct option. Obscure means again unclear. It was there in the options also in one of the tests of ours, right? Precise, precise and clear. Precise means clear. So vague means unclear, precise is clear, right? So our correct answer is precise. If we talk about D, imperceptible means something so small which you cannot see, बहुत छोटा, right? So again, if something is very small which we are not able to see, so that is not clear for sure. So our correct answer for this question is C, precise. Okay. C. Let's go to the question number 3. She performed all her duties conscientiously. Okay, conscientious. Okay, that means your inner things, iman, right? The good things, internal good thing which stops you to do bad things. Okay, अंदर से एक ज़मीर, right? Iman, fine. So here the duty we are performing with our utmost, dedication. वहां यहाँ पे इसका मतलब ये है एज पर द सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? एसिडुअसली का मतलब होता है अगेन वेरी हार्ड वर्किंग, जो एकदम निष्ठा से, भक्ति भाव से अपने काम करे, राइट? केयरलेसली, जिसको कोई फर्क नहीं है, काम हो मत हो, इज जस्ट गेटिंग पेड, दैट डज नॉट मीन, राइट? एंड पेन्सटेकिंगली, मतलब वैसा काम जिसको करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो और पेन हो, अगेन हार्ड वर्किंग, इट्स मीनिंग इज हार्ड वर्किंग. And then we have scrupulously.
that also mean being honest. So ये दो words C and D are similar. A, hardworking, again giving the similar meaning. Okay, one is the exact opposite. The B, option of B, carelessly, मतलब आपको कोई भी निष्ठा नहीं है अपने काम के लिए. Okay, that is going to be our correct answer for this question. That is carelessly. Fine. Number 4. These risks are incidental to the work of a firefighter. Incidental means something which happens by default. एक important काम करने जाओ तो कुछ छोटी छोटी चीजें भी अपने आप हो जाती हैं, which is not required, और जिसको जो ज्यादा which does not barge in the importance, जो ज्यादा importance hold नहीं करता है, right? So advantageous, essential मतलब जो जरूरी है, right? What is important, and incidental means something which happened which is not important, जो by default ही खुद से हुआ है, that's it, fine. Serendipitous, subsidiary जो हमें ये मिलता है ना छूट, that is not relevant here. So the core meaning of incidental does not have importance. उसका opposite essential, and this has the same meaning which does not hold a lot of importance. Fine. Option of B and C. Question number 5. She has always been disdainful of poor people. Disdainful मतलब जो दूसरों की को अच्छा ना समझे, right? उन्हें बुरा भला कहे, बुरा भला समझे, right? So means तिरस्कार पूर्ण, जो आप दूसरों की बेइज्जती करते हो, उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हो, that is the meaning of disdainful. Okay. Reverential means very what do we call, बहुत ही ज्यादा सत्कार करने वाले लोग, like that person is very reverential, he kept me very in a very good manner. Okay. Then derisive have again the same meaning, which means जो थोड़ा आपके लिए थोड़ा rude हो. Insolent also I have given in the class also. Insolent means rude. And supercilious मतलब ज्यादा लगा वगा के बोलने वाले लोग, which does not have good feeling for you, but वो आपके सामने they are good, but later on they are not. ठीक है, तो here this is the exact opposite of the word. Discareful और इज्जत करने वाले लोग, who are very good to you. Okay, they have a very good behavior. So these antonyms are done. Now let's come to close test. Fine. Most of our food comes from agriculture, so we tend to believe that it is independent, dependent, relevant, consequent. Means हमारे ज्यादातर जो हमारा जो खाना आता है वो खेती बाड़ी से आता है, तो हम ये बिलीव करते हैं कि ये नेचुरल बाइटा से ये मतलब नेचुरल बाइटा जो एनिमल्स फॉलो करते हैं ना कि लायन इज ईटिंग डियर, डियर ईट्स ग्रास, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल बाइटा. फाइन. सो उससे फ्री है, दैट इज नॉट ट्रू. तो यहाँ होगा करेक्ट आंसर वुड बी ए, इंडिपेंडेंट ऑफ. ग्रामेटिकली भी डिपेंडेंट के बाद ऑफ नहीं आता, रिलेवेंट के बाद भी ऑफ, रिलेवेंट के बाद टू आता है, एंड कंसिक्वेंट ये तो स्टार्टिंग ही है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कंसिक्वेंसेस. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब ये ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर ही सब कुछ हमारा फूड वहीं से आता है, बट नेचुरल बाइटा भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फूड रिक्वायरमेंट्स. ओके, so 6, then 7, the plants and animals. Fine. So this is part of conjunction. I told you there are some correlative conjunction which goes hand in hand. So and is given, and in the options we have both. I told you that both and goes hand in hand. Fine. So the correct answer is B, both. Plants and animals. See everybody, this entire passage is saying a general thing. It's a part of biology. Okay, so everything is जो general things होते हैं सारे simple present tense में होते हैं. So we are not going to pick something which is in the past. So had been continuously subjected. रहे थे, no, not correct. Will be continuously subjected in future. Continuously animals continuously subjected. We are missing a verb here. So the correct option here is D, are continuously subjected. Okay, so D is our correct answer here. To the rigors of natural
सिलेक्शन, रिगर्स मतलब हार्डशिप, ठीक है। ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव, कंसिक्वेंटली, इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में। 9 का आंसर होगा ऑल दो, मतलब ऐसा तो है कुछ लोग जो हम हमेशा उनको समझते हैं कि ये इनपे प्रकृति बहुत ही ज्यादा उनपे एडवर्स कंडीशन डालती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सिर्फ जो सबसे अच्छा होता है, फिट होता है, वही सर्वाइव करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बातें बताई गई हैं। वाइल्ड पॉपुलेशन हैव न्यूमरस ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी ये सारी खूबियां होती हैं कि वो बहुत कम्पिटिटिव होते हैं, मतलब जहां रहते हैं वहां compete करके रहते हैं, मतलब राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस है। तो हियर विल पुट ऑल्दो, हालांकि while populations have numerous traits for competitiveness, resistant to parasites मतलब parasites से वो खुद को बचाव कर पाते हैं, and to adverse conditions, adverse का मतलब होता है बहुत ही बुरी conditions, okay। तो adverse conditions में they are going to adapt, बुरी conditions कभी कभी आती है तो they animals just tolerate it, ठीक है, उसको सहते हैं वो, ठीक है, and still they survive। तो B, 10 आंसर will be B। विड्रॉल मतलब वहां से निकाल लेना। अडेप्टेबल, कैन सम पीपल कैन थिंक कि अडेप्टेबल होगा, लेकिन अडेप्टेबल तब होता है जब आप पूरा पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाए एंड यू आर गेटिंग टू इट, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी तुरंत नहीं आती है, फाइन। 11th, so here competitiveness, resistance, parasites, tolerance to adverse conditions, और लास्ट में हम लोग जब भी देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो लास्ट का जो चीज बताते हैं वी पुट इन कंजंक्शन विद दैट। तो व्हिच कंडक्शन इज गोइंग टू बी फिट हियर, दैट इज एंड, राइट। सो 11A। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ विगर, विगर मतलब ताकत, ताकत की और भी बातें हैं, मतलब ये 4-5 तो है ही, और भी चीजें हैं जो वाइल्ड एनिमल्स पॉजेस करते हैं। तो 11A, विद नॉट विद, because यहाँ पे कॉमा भी है, तो we are going to put and, it is adding the last point to this list, fine। uh, in contrast, population grown for, see everybody, I told you when I was taking classes कि अगर 2-3 ऑप्शंस आपके सेम हो गए तो that is not going to be your answer। और यहाँ पे एरा का मतलब और पीरियड का मतलब एक ही होता है, that is time, right। epochs का मतलब, epochs and periods are somewhere synonym also, ठीक है। सॉरी, epochs and eras, ठीक है। तो ये तीनों ही नहीं होंगे, बट जनरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। जनरेशन मतलब एक जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। सो डी इज द बेस्ट फिट, और अगेन दीज थ्री आर इलिमिनेटेड बिकॉज़ दीज थ्री आर सेम। तो अगर ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो सिनोनिम है, फाइन। सो दीज ऑल थ्री आर नॉट गोइंग टू बी फिट हियर। वैसे अगर लगाओगे तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये लगेगा तो ये क्यों नहीं। तो ऑल थ्री आर सेम, जनरेशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, सो वी आर गोइंग टू पुट जनरेशन हियर, बिकॉज आगे आई थिंक कुछ जनरेशन रिलेटेड वर्ड्स आने वाले हैं, लाइक जेनेटिक समथिंग, लेट्स सी। ओके, अंडर द पैम्पर्ड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू लूज दीज ट्रेड्स। लेकिन जो कंडीशन लाइक एग्रीकल्चर में क्या होता है, चीजों को बहुत पैम्पर्ड करते हैं, अगर कुछ हुआ तो वी गिव सम फर्टिलाइजर एंड ऑल। एग्रीकल्चर में वी जस्ट इग्नोर देयर एजिलिटी, उनकी एजिलिटी को इग्नोर करते, उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे। सो कंडीशन ऑफ एग्री टेंड टू लूज दिस ट्रेस बिकॉज दे अगेन इट्स अ जनरल आइडिया विच इज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर। तो ये भी होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हैड, हैव, उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, दे आर सिलेक्ट, उनको सिलेक्ट किया जाता है, दैट सी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट फिट हियर। 13 का सी, लूज देयर ट्रेड बिकॉज दे आर सिलेक्टेड फॉर प्रोडक्शन नॉट रेजिलियंस। उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ना कि उनकी रेजिलियंस के लिए, फाइन। It is talking about agriculture and about the plants. For example, a high producing plant, non-living thing, it's not a human, it's a living thing, it's not a human. For human we use right. Plant whenever lacks, a high producing plant whenever means jab bhi, whichever,
हाँ, so it should be D. जब भी वो wait, here's some not reason. For example, a high producing plant, whichever lacks resistance to roof is high producing plant. For example, जब भी resistance to roof is not resilience. For example, a high producing plant, whenever lacks resilience to is irrigated and the resistance to drought is ignored. Okay, 14 will be D. That whichever. Both are correct. जो भी plant, both are somewhere same. That or whichever. ठीक है. तो whenever इसलिए यहाँ पे होगा क्योंकि जब भी वो ड्रॉप मतलब सूखा, जब बारिश नहीं होती है तो क्या करते हैं लोग? Then 15 irrigated में उसकी सिंचाई कर देते हैं. Fine. So 15B and the resistance to drought is ignored. उसका जो रेसिस्टेंस होता है ड्रफ से वो इग्नोर कर दिया जाता है. मतलब वो खुद भी सर्वाइव कर सकता है ना, बट नो, वी पैम्पर, लाइक farmers pamper them by giving the extra water. Okay. Okay, just go through next page. Is the last one? Okay, fine. So yeah, this was all about closed test. Fine. Now we are choosing the words which were dominated by tenses, modals. Tenses, modals. No, and one was adjective. One question was belonging to adjective. Preeti suggests that I ask to your advice. Ask to your advice. There are some verbs which does not take to after them. Ask is one of them. Okay, you please, there are so many example. If you want to know something, you can ask me. We say ask me, object directly. So ask is never followed by to. Okay. So Priti suggests that I asked to. So A is wrong. That I had asked to your suggest. This is the present, simple present. So something which go after that will be also in present. Present tense. So Preeti suggests that I ask your advice. उसने मुझे suggest किया कि मैं तुम्हारी advice लूं. ठीक है? तो our correct answer is D. We saw this question was from adjectives, superlative adjectives. Fine. We saw the older of all. As I told you previously, कि older is only used followed by than. ठीक है? तो यहाँ तो है नहीं. तो A is cancelled, eliminated. The old of all monuments in the city. The old of बहुत सारे हैं उसमें से old. So it is not giving any degree. यहाँ पे सिर्फ old लिखा हुआ है. That is positive degree. Wrong. The oldest monument in the city. सबसे पुराना वाला कहाँ पे? यहाँ पे एक आपको बेस लाइन भी दिया हुआ है. उस सिटी में सबसे पुराना. तो C is our correct answer for this question. Since you have been touring all day, this question is from modal. Okay, you must be tired. You ought to have been tired. You could have been tired. You might not be tired. ऐसा नहीं है. अगर कोई पूरे दिन घूमे तो वो जरूर रात में थक ही जाता है, right? So you were playing whole day. You must be tired right now, right? So it should be must be. तुम जरूर थक गए होगे, right? So 18A. The correct option of 18 is A. Oh, let me write the options. A, here C, here D. Fine. His condition is serious, but it should be worse. So whenever somebody is कुछ चीज खराब हो जाती है या फिर कोई इंसान is not in the good condition, we don't say कि आपको और खराब हो जाना चाहिए था. So कंडीशन खराब है, पर जैसे इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुई कि और ज्यादा खराब हो सकती थी. ओके, हो सकती थी. तो यू आउट टू हैव बीन, अगेन इट्स अ ड्यूटी, इट शोज ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. तो आउट तो नहीं होगा. यू कुड, सॉरी,
we are doing this one na 19 months. I'm so sorry, my bad. His condition is serious but it should be worse. ये और खराब होनी चाहिए थी. No, it out to be worse. It's not a obligation कि मेरी condition अगर खराब है तो मेरी condition और खराब होनी चाहिए थी. It's not an obligation, right? It could be worse. Suppose इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुई, कंडीशन तो खराब है लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि और खराब हो सकता था. It could be more serious, right? So it is going to be C. 19 का C. 20. I hope the bus comes soon because we waited for half an hour. So bus, there are some people, some passengers are waiting for a bus जो कि अभी आई नहीं है, वो अभी भी वेट कर रहे हैं. ठीक है, तो कोई चीज आपने पास में स्टार्ट करी और वो अभी भी चल रही है, तो दैट वी से लाइक आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. तो मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और अभी भी कर ही रही हूँ, राइट? तो बस अभी आई नहीं है तो वी कैन नॉट से कि वी वेटेड फॉर हाफ एन आवर. वेट खत्म हो जाता तो वी कैन से वी वेटेड. ओके, सिंपल पास. So we will say we have been waiting for half an hour. हम लोग आधे घंटे से ज्यादा से अभी तक वेट कर ही रहे हैं और अब होप अब बस आ जाए, राइट? करेक्ट ऑप्शन इज वी. वी वेटिंग सी नहीं होगा क्योंकि सी में एक इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है. वी आर वेटिंग वो नहीं है. वी कुड हैव बीन वेटिंग फॉर, हम लोग और वेट कर सकते थे. नॉट गिविंग करेक्ट सेंस. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी. I hope the bus comes soon because we have been waiting for half an hour. तो यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल है, we have been waiting. Okay, उतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं, अब तो बस को आ जाना चाहिए. मतलब I hope कि बस जल्दी आ जाए, मतलब the same meaning. Okay, 21. Someone, right? Someone is a singular subject. Yeah. तो someone should have किसी ने कर दिया होगा, have तो आएगा ही नहीं. तो ये B, C are cancelled. Someone would spill juice on sofa. Someone would. No, someone के साथ has. Someone has spilled juice on sofa. किसी ने सोफे पे जूस गिरा दिया है. और would के साथ अगर यहाँ होगा ना तो would नहीं होगा डायरेक्टली. It should be would have spilled. मतलब किसी ने सोफे पे जूस गिरा दिया होगा तो somebody would have spilled the juice on sofa. Would यहाँ पे have हमारा missing है. It's not correct. So someone has spilled the juice on the sofa. So the correct answer is A here. Here C, यहाँ पे B. What would you do? This is the part of conditionals, right? What would you do if you found your lost toy? अगर तुम्हें तुम्हारा पुराना खिलौना मिल जाए तुम क्या करोगे? If you will have found, no, wrong. If you would found, यहाँ पे would है. कंडीशनल 2 में हमने देखा था कि फर्स्ट जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है और सेकंड जिसमें if लगा होता है उसके साथ हम would लगाते हैं. तो यहाँ पे would पहले ही लगा हुआ है. We have to find a sentence which is in past tense. So what would you do if you found your lost toy? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ खिलौना मिल जाए? तो A is our correct fit here. If I were you, again hypothetical and conditional. अगर मैं तुम होती, I के साथ were कभी नहीं लगता है until unless it is a hypothetical situation. If I were you, I should not. मुझे नहीं करना चाहिए था. No, I weren't buying that dress. यहाँ देखिए कंडीशन में I were सिंपल पास्ट पहले में लगा हुआ है तो अब हमें ऐसे सेंटेंस है इसमें would हो, right? तो B is the correct fit here. If I were you, I wouldn't buy that dress. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती? मैं वो ड्रेस नहीं खरीदती. I would have not buy that dress. Okay, conditional past, simple past and then would वाला sentence. Okay, that is satisfying our conditional 2. I wouldn't buy that dress. I wish I could help you. This is a very normal sentence. By saying also we say I wish I could help you. I wish I could come with you for a party, but I have to study, right? So अगर थोड़ा सा general communication English भी if you are aware of, तो ये
बिल्कुल क्लियर है। ग्रामेटिकली भी आई आउट टू हेल्प यू, मेरी ड्यूटी है। मैं सोचता हूँ क्या काश मेरी ऐसी ड्यूटी होती कि मैं तुमको हेल्प करता, तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। आई विश आई डिड हेल्प यू, यहाँ पे आई डिड हेल्प यू तो नहीं होगा, इट शुड बी आई हेल्प्ड यू। आई विश आई हेल्प्ड यू, रॉन्ग, नॉट गिविंग गुड सेंस। आई विश आई मस्ट हेल्प यू, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर, लेकिन वो विश करा ना कि आई एम दैट पर्सन इज विशिंग कि आई विश, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता, उसने किया नहीं अभी तक, वो अभी सोच ही रहा है, राइट। आई विश आई कुड हेल्प यू, सो ए, right? This is also from modal, right? The efforts of the security services have not been quite मतलब उनकी सर्विसेज ना ठीक है, बट देयर इज अ मार्क, एक बेंचमार्क सेट होता है हर चीज का। योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। हर हर वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, मतलब जितना होना चाहिए एक मार्क सेट होता है उस वहां तक नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम है, द एफर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज हैव नॉट बीन क्वाइट अप टू द मार्क, up to the mark. Hope this question was correct from your end as well. Uptight, uptake. Fine. So we have done choosing the sentences, choosing the words, right? Now let's move to idioms. Fine. So idioms and phrases. So phrases are not there. So idioms are there. A white line. So I think I have discussed this in the classroom also. A white line is insignificant line. Insignificant जो ज्यादा बड़ा झूठ नहीं होता है, दैट इज जो पता चल जाए, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो थोड़ी ट्रिकी कर दी है आपके लिए, राइट। सो एन ऑफेंसिव वे ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग, टू डू समथिंग कंप्लीटली इम्पॉसिबल, दीज टू आर आउट ऑफ द लीग, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। A lie that is absolutely and universally true, ऐसा झूठ जो हर जगह एकदम सच होता है, जो हर जगह एप्लीकेबल हो, ठीक है, तो दैट इज नॉट यूनिवर्सल, राइट। बट हियर अ लाई दैट यू टेल टू अवॉइड हर्टिंग समवन, अगर कोई किसी ने आपके लिए कुछ फूड बनाया, इवन दैट इज नॉट टेस्टिंग गुड, बट आप वो आपका लव वन है, सो यू से समथिंग गुड अबाउट द फूड कि हाँ फूड इज गुड। अब सब वो इंसान जिसने वो फूड को बनाया है, दैट पर्सन इज आल्सो गोइंग टू ईट दैट फूड, उसको तो पता चल जाएगा ना कि फूड तो अच्छा था ही नहीं। So the lie which you tell to, you know, prevent somebody to be hurt, so वो झूठ जो होता है वो होता है white lie। वैसे इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, और भी मतलब है, वैसा झूठ जो जल्दी पकड़ में आ जाए। ऑफ कोर्स अगर आप झूठ बोलोगे तो ऐसा झूठ बोलोगे जो तुरंत किसी को खुश करने के लिए बोलोगे झूठ, तो तुरंत पकड़ में ही आ जाएगा, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेरी bad blood. Bad blood is, you know, थोड़ा bad blood by ऐसा, you know, मतलब खून में ही किसी के लिए कुछ बुराई है, when ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, right? So it is giving a clear sense somewhere. Bad blood means वैसे लोग जो एक दूसरे को hate करते हैं, right? I have a bad blood with them. So So option is, let's see the option, feeling of hatred between people, a situation which goes from bad to worse, a fatal accident, बहुत ही खतरनाक वाला accident, to accept the unpleasant situation. So all these three are not the correct one. Feeling of hatred between people, मतलब दो लोगों के बीच में जो खटास होती है ना कि एक दूसरे उसको तो देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा लेवल वाला hate अगर आप किसी करते हो, that is a bad blood, right? So correct option is B. 28 count your blessings. We often, like जो लोग होते हैं ना motivational speakers, they often say you should count your blessing. मतलब don't be depressed. तुम्हारे पास जितनी अच्छी चीजें हैं ना उनको देखो, right? Count your blessings, not your curse. ये एक अच्छा सा एक idiom है. Count your blessings is to be grateful for something which you have. ठीक है, तो let's see the option to start understanding how badly something has affected you. No. An event which gradually becomes worse. No. To be grateful for good things in your life. Okay, so clear cut C is the correct option for this. Fine. C. इसका है C, इसका भी C है. Bad blood.
का A. Have the last laugh. This idiom is matching with many of the, there was a idiom called dark horse, right? जो आपको पता नहीं था कि वो इंसान कमाल कर जाएगा, बट छुपा रुस्तम निकला वो, बाद में उसने ऐसा किया कि सब हैरान रह गए. तो this last laugh is somewhere similar to the dark horse. ठीक है? To be the worst example of something, no. To succeed when others thought that you would not. See, ये same explanation है dark horse का भी. So this have the last laugh. आपको सब पहले समझते थे कि you are not going to do something or anything, but at the last you are the person who's laughing on their presumptions. वो सोचते थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, but now you are laughing on their presumption because now you have succeeded, right? So for 29, our correct answer is B. 28, C. 30. Sit on the fence. Again, the option may make you confused because options को थोड़ा घुमा के बोला गया. Sit on the fence का मतलब the person who is confused कि किसकी साइड ली जाए. अगर आपके दो फ्रेंड्स में झगड़ा हो गया है, दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो यू आर कंफ्यूज, इसकी साइड लूं या उसकी साइड लूं. अब तय नहीं कर पा रहे हो कि किसके तरफ से बोलूं. फाइन. सो टू मेक समबडी suddenly notice you, not even near to fail completely, to delay making a decision, it is somewhere same as per the meaning. आप तय नहीं कर पा रहे कि इसके तरफ से बोलूं या इसके तरफ से बोलूं, तो वो एक तरह से डिले हो रहा है आपके डिसीजन मेकिंग में, राइट? सो दैट इज द very close fit for our answer. Okay, here comes the favorite part of many of the students, that is para jumbles, which was I was very happy to see this. Okay, let's solve the very first one. Good quality elementary education as a fundamental right of all children, the right to education. Yes. So to the standards and norms specified in Act. So we like there are some prepositions जिससे sentence start होते हैं, but इस केस में to से sentence will not start. तो हमारा जो S वाला ऑप्शन है, S पहले नहीं आएगा, तो it is cancelled, eliminated. Fine. Now we'll do some pairing. ठीक है? Let's do the Right to Education Act mandates मतलब उसको lawful बनाना. Mandates good quality elementary education. RP conforming to the standards and norms specified in the Act as a fundamental right of all children. So there is a pair of RP and there is a pair of S and Q. So RP, this is 1, this is 2, S is 3, RP is 4. So correct option is B. Fine. Hope it is correct for you people. Fine. Next is the conflicts, मतलब झगड़ा, मतलब dispute, and dispute in their mind. Music not only, I think ये relieve है, छुप गया थोड़ा, हाँ relieve ही है. Okay, let's identify the nouns here. Conflicts is also a noun, but let's see some other. Music not only, यहाँ पे grammatical error हो गया है, यहाँ पे music does not only, does यहाँ पे छुट गया उन लोगों से. Music not only relieves burden on children, तो Q and R का clear pair है यहाँ पे. Music not only relieve on burden on children and the young, but again the contrast. ठीक है? तो इसके बाद हमारा but है, but also alleviates the conflict and dispute in their mind. Alleviate का मतलब होता है बढ़ा, alleviate का मतलब होता है घटाना. Elevate and alleviate opposites. Alleviate मतलब घटा देते हैं, जो दिमाग में जो भी conflict या dispute चल रही है तो उसको घटा देते हैं. So our pair is Q, R, S and P. Q, R, S and P. So A is the clear answer for 32 number. Fine. Okay, let's identify noun in this 33 one. Antarctica is a continent, but it is virtually covered by a dome-shaped icy neolithic. No.
Antarctica is a continent nearly twice as large as Australia. मतलब अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ऑस्ट्रेलिया से दुगना बड़ा है, लेकिन इट इज वर्चुअली कवर्ड बाय अ डोम शेप आइस शीट 2 माइल्स से। लेकिन ये वर्चुअली आभासी रूप से एक डोम शेप आइस शीट से ढका हुआ है जो कि 2 माइल मोटा है। तो अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट डोम शेप्ड QR and then PS. That's our correct jumble. Okay. 34. Okay. 34. The global economic weight from the advanced economies, that there was a major shift. Okay, let's identify the main noun here. So the G20 was formed in 1999 as a forum of finance ministers एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो यहाँ पे एंड के आगे और पीछे दोनों एक लेवल के वर्ड्स रहेंगे, तो ये और ये, इट इज गिविंग अस अ पेयर। तो SRR इन पेयर, ठीक है। SR के बाद इन द फैक्ट दैट देयर वाज अ मेजर शिफ्ट इन, एक क्यू से तो एंड होगा नहीं, सेंटेंस इन है लास्ट में, तो फैक्ट दैट देयर वाज अ मेजर शिफ्ट इन द global economic weight from the advanced. Okay, SRQP D is our correct answer. Okay, aquaculture and, okay, let's move it. There's an arrow. Wait, let me just shift. Okay, arrow, yeah, fine. Hope it is visible now. These things. Aquaculture nation in the world and P से N हो रहा है कुछ, P से no S. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट वॉट, यहाँ देखो सारे BCD आपके ऑप्शन, इंडिया इज द लार्जेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव से कोई भी वर्ड एंड होगा क्या, मतलब उसको नाउन चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो लार्जेस्ट, सारे ऑप्शन हमारे लार्जेस्ट से ही एंड हो रहे हैं, तो ये सारे ही एलिमिनेट हो गए, वी हैव ओनली वन आंसर। और आप अगर थोड़ा सा उसको वेरीफाई भी कर लो, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग and second largest aquaculture nation in the world, and India's products are exported to many nations. India जो है थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग और सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है वर्ल्ड में, और इंडिया की जो चीजें हैं वो बाहर भी जाती हैं, ठीक है। तो SRPQ, वैसे तो एलिमिनेशन से हमें आंसर मिल गया था, बट आपने वेरीफाई किया तो भी यही आ रहा है, ठीक है। फाइन, लेट मी जस्ट पुट इट डाउन। ओके, फाइन। Okay, let's move to identify the parts of speech. Okay, adders are the only poisonous snakes found across Britain. Adders ही ऐसे snakes हैं जो ब्रिटेन में पाए जाते हैं। तो it's clear cut noun, because कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है उसका सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। एडस जैसा कोई प्रोनाउन तो होता नहीं है, तो इट इज अ क्लियर शॉर्ट नाउन, ठीक है। She spoke to him once since he has been in town. देखो since is ना, सिंस के बहुत सारे फैमिलीज हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीजों से आता है। सिंस जो है प्रीपोजिशन भी है, सिंस कंजंक्शन भी है, और हाँ सिंस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कैसा उसका यूज हो रहा है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट, उसी के अकॉर्डिंग वी विल सी कि सिंस क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, शी स्पोक टू हिम वंस, उसने उससे एक बारी बात करी, सिंस ही हैज बीन इन टाउन, जैसा कि वो यहाँ शहर में था, उसने एक बारी उससे बात करी, उसने उससे एक बार बात की, क्योंकि जैसा कि वो शहर में था, कोई इंसान शहर में आया है तो मैंने उससे बात की। तो ये हो गया फर्स्ट क्लॉज, और ये हो गया हमारा सेकंड क्लॉज। दो क्लॉजों को जोड़ने वाला प्रीपोजिशन तो नहीं होगा,
प्रीपोजिशन कनेक्ट्स नाउन, राइट? यहाँ दो पार्ट्स हैं तो इट इज कंजंक्शन, राइट? कंजंक्शन, फाइन। तो इसका हो गया हमारा ए, इसका हो गया सी, ठीक है? प्रीपोजिशन भी है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यहाँ पे प्रीपोजिशन है बट यहाँ पे नहीं, ठीक है? यहाँ पे दो चीजों को जोड़ रहा है। आई डोंट रियली वांट टू गो बिसाइड, इट्स टू लेट नाउ, मैं जाना नहीं चाहती हूँ, और तो और अब बहुत रात भी हो गई है। इट्स टू लेट, लेट क्या है? लेट है, लेट इज एन एडजेक्टिव और नाउ लगा हुआ है लेट के लिए, ठीक है? तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। So now is adverb here, ठीक है? B is the correct one, ठीक है? Next, look at that man over there. When I was teaching you this, ठीक है? Look at that, these, those और a and the जब ऐसे आए तो these are determiners, determine करते हैं that boy, this boy, okay, these girls, those people, okay, so that is a determiner. मैंने आपको बोला भी था जब भी ऐसा कुछ that, these, those आए तो वो होते हैं determiners, ठीक है? तो determiner, short this, that, these, determiners, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से बिलोंग करते हैं, वो pronouns भी होते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव भी होते हैं, तो उसका एक शॉर्ट एक नाम होता है डिटरमाइनर, वो डिटरमाइन करते हैं चीजों को, राइट? द प्लेन इज रेडी टू टेक ऑफ, ये थोड़ा सा मतलब उलझाने वाला है, क्योंकि टेक ऑफ वी नो कि टेक ऑफ तो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है? तो फ्रेजल वर्ब है तो वर्ब होना चाहिए, लेकिन इफ वी सी द सेंटेंस, कभी कभी कुछ वर्ब एज अ नाउन भी एक्ट करते हैं, राइट? जैसे आई लाइक साइक्लिंग, यहाँ पे साइक्लिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे साइक्लिंग एक नाउन है, एक एक्टिविटी का नाम जो मेरे को पसंद है। तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस है जो अभी होने वाला है, तो यहाँ पे टेक ऑफ है तो फ्रेजल वर्ब, बट यहाँ पे जस्ट लाइक सिंस, ठीक है? सिंस प्रीपोजिशन कंजंक्शन दोनों है, बट यहाँ पे वो कंजंक्शन है। टेक ऑफ यहाँ पर नाउन है, इट्स अ प्रोसेस, द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, उसके आगे प्रीपोजिशन भी लगा है, इट्स नाउन ए, ठीक है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो है तो फ्रेजल वर्ब, बेसिकली वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वो है एज अ नाउन, ठीक है? लेट्स कम टू दिस बिकॉज नाउ द आरसी व्हिच वाज नॉट इजी, इट वाज अ बिट अबव मॉडरेट लेवल, बट जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी उनसे बन गया होगा, राइट? So I'm not going to read the whole RC. We'll just go to the questions. और questions का कहाँ से उसका relevance है? We'll talk about that. Okay. So 41. What according to the passage is the unwelcome form of the globalization? Say so. Allow me a minute. Yeah, sure. 41 questions are there. 10 more. ओके, सो व्हाट इज द अनवेलकम फॉर्म ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन जो होता है उसको सारे फॉर्म को हम लोग वेलकम करते हैं, इंटरनेट से सब कुछ जुड़ गया है, पैसेज में ऐसा लिखा है। अनवेलकम फॉर्म क्या है? जिसको हम नहीं चाहते हैं, तो ये हाल ही में जो कोविड हुआ था, दैट इज द अनवेलकम फॉर्म। चाइना में हुआ था, लेकिन चाइना से वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया, दैट इज द अनवेलकम फॉर्म। दैट इज क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डिजीज, एल्यूसिव गोल ऑफ, ये तो कुछ है ही नहीं मेंशन, ये बाद में आता है, इससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डिजीज वो अनवेलकम पार्ट है, उसको पसंद नहीं करते हम लोग। चाइना में कोविड हुआ और पूरे वर्ल्ड में फैल गया, दैट्स अ वेरी बैड थिंग, दैट इज वेरी अनवेलकमिंग थिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब चीजों का ग्लोबलाइजेशन हो, ठीक हो, यहाँ कोई ब्रांड कोई अच्छी प्रोडक्ट निकाली और पूरे वर्ल्ड में फैले, वो अच्छी बात है, लेकिन कोई डिजीज एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए, वो अच्छी बात नहीं है। So it's clear cut 1, right? According to the passage, globalization of health has become imperative due to, again, अब डिजीज का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उसका जो सोल्यूशन है दैट इज हेल्थ, उसका भी ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। जैसे चाइना में कोई वायरस निकला
तो चाइना के लोग को तो पता है कि इसको कम कैसे करना है, लेकिन दूसरे वर्ल्ड के लोगों को नहीं पता है। तो जो एंटीडोट है उसका भी ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। फाइन, सो द करेक्ट आंसर इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। और यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ना, हाँ यहाँ देखो, यहाँ एकदम शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है, अनवेलकम फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डिजीज। वो यहाँ एकदम शॉर्ट शॉर्ट आंसर ही आपको दिया हुआ, वन वर्ड वन सेंटेंस में, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑथर ने बताया है इस वाले में कि सारे लोग जो है ना, ऑल द यूनिवर्सिटीज एवरीथिंग शुड नो अबाउट द सोल्यूशन ऑफ एनी डिजीज। ये वाले पैराग्राफ यहाँ से उस जो ऑथर है उन्होंने बताया है। तो दिस अकॉर्डिंग टू पैसेज रिसर्जेंट डिजीज, रिसर्जेंट डिजीज वैसे डिजीज जो बाय द टाइम फिर से हो जाते हैं, ठीक है, कुछ चीज ठीक हुई बाद में फिर से हो गई। फाइन, रिसर्जेंट डिजीज आर अफेक्टेड बाय मेडिकल प्रैक्टिसेस, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड क्या है यहाँ पे, चलो मिनट, इमरजेंसीज ऑफ न्यू स्ट्रेन्स। तो यहाँ पे है हाँ यहाँ पे resurgent diseases by contrast are a creation of our medical practices. One, by treating people with antibiotics without restraint. Restraint मतलब कोई लिमिट नहीं है, मतलब कुछ हुआ तो एंटीबायोटिक्स लेते ही जा रहे हैं, कोई ओवर यूज कर रहे हैं उसका, ठीक है। ये नंबर 2, और we unknowingly select strains that are immune to एंटीबायोटिक। और ऐसा करने से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ स्टेन्स वैसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से इम्यून है, मतलब एंटीबायोटिक खा के वो मरते नहीं है, वो और अच्छे हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, राइट। सो दीज 3 थिंग्स आर क्लियरली मेंशन। फाइन, तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑल 3 तीनों लिखा है वहां पे, ठीक है। 44, according to passage, many new diseases are emerging due to change in land use because humans are coming in contact with unfamiliar virus. Yes, यहीं पे, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, ये इन्फरेंस टाइप है थोड़ा। यहाँ देखो, disease, many of the new diseases are clearly linked to change in land use which brings humans into close contact with rodents and other animals. जितने भी कोरोना वगैरह हुए वो भी एनिमल से आया ना, पहले एनिमल से आया, फिर लोगों को हुआ, फिर पूरे देश के लोगों को हो गया, फिर दूसरे देश के लोगों को भी हो गया, तो ठीक है। तो वी गेट कॉन्टैक्ट विद द अनफेमिलियर वायरस। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। वो शॉर्ट शॉर्ट आंसर वहां पे इन्फरेंस बेस्ड है, बट द वेरी गुड क्लू, द वेरी dominant clue is given there in that passage which I mentioned. What is the meaning of the word epidemiology? ये भी इन्फरेंस है। ये पूरा पैसेज किस बारे में था कि एक वायरस कैसे फैलता है, दूसरे देशों में भी चला जाता है, वो उसको रोकना कैसे चाहिए, तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, टीवी, बुक्स, यूनिवर्सिटी, सबको ये बताना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज सिर्फ उसके बारे में था। और एपिडेमियोलॉजी यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे books and women are men of the front lines of epidemiology। मतलब किसी चीज को, मतलब कोई भी वायरस कैसे फैलता है, उसको कैसे रोकना चाहिए। लॉजी, देखो लॉजी का मतलब तो कोई सब्जेक्ट, जूलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। लॉजी इज आल्सो सब्जेक्ट, लेकिन किस चीज का सब्जेक्ट। तो ये पूरा जो पैसेज था हमारा, वो एक वायरस कैसे फैलता है, उसको कैसे रोकना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो जो हेल्प करेंगी रोकने से, वो सारा लिखा हुआ था। तो बी इज द करेक्ट आंसर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज, ठीक है, एज अ स्टडी। बाकी में हिस्टोरिक स्टडी, स्प्रेड भी और उसको रोकना कैसे वो भी, ये होता है एपिडेमियोलॉजी, वहां इट इज गिवन, राइट। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। allow me a minute. Hope it is visible. Okay, sages and seers have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusory traps. ये है हमारा क्वेश्चन सिनोनिम का, आपको सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स बताने हैं। तो कॉशन,
मतलब चेताना किसी को, चेतावनी देना। रीजन मतलब कारण बताना। एडमिटेड मतलब ये कर लेना, मान लेना ये बात को। आई एडमिट दैट यू आर अ गुड बॉय, मैंने ये मान ली थी तुम अच्छे लड़के हो। रिफ्यूज्ड मतलब मना कर देना। और वार्न मतलब चेतावनी देना। तो कॉशन एंड वार्न आर सेम इन मीनिंग, so this is the correct. The officer reported the details of the mission in monotonous manner. Mono मतलब one, tone मतलब color, और full of one color, एक ही जैसा चीज। अब रोज एक ही जैसा करोगे चीज तो आपकी लाइफ पूरी बोरिंग हो जाएगी, राइट? एक ही चीज, एक ही कपड़े अगर रोज पहनो तो बोरिंग लगता है, राइट? वी नीड अ चेंज। तो मोनोटोनस का सेम मीनिंग क्या होगा? डल। हैप्पी नो, नॉट रिलेवेंट। डिस्टर्ब, इंथुजियास्टिक, तो हैप्पी और इंथुजियास्टिक आर समवेयर सेम। तो मोनोटोनस का जो मीनिंग है क्या होगा? डल, बोरिंग, जिसमें कोई मजा नहीं है, मोनोटोनस। ठीक है, तो ए, यहाँ इसका सी का ए। देयर आर मेनी इल्यूसिव क्वेश्चंस इन फिलोसफी। इल्यूसिव मतलब कंफ्यूजिंग, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो कंफ्यूज करे। तो क्लियर अपोजिट है उसका, आंसर हो ही नहीं सकता वो। बैफलिंग, बैफलिंग का मतलब होता है थोड़ा घुमाने वाला, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, उलझाने वाला, राइट? पैरामाउंट मतलब बहुत ही अच्छा, और ट्रूथफुल सच्चा। तो पैरामाउंट, ट्रूथफुल आर नॉट गोइंग टू बी अ फिट, बट बैफलिंग उलझाना और इल्यूसिव कंफ्यूजिंग एक ही जैसा मतलब दे रहे हैं, राइट? तो वो आवर करेक्ट आंसर इज बी, बैफलिंग। Then we have 49, clearing the mess is a mammoth task. Mammoth क्या होता है? Mammoth is a name of a, आपने शायद हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा, हाथी के जितना बड़ा एक कोई जीव रहता था, एन एनिमल इन स्पीशीज, जो अब नहीं है, लेकिन बहुत हाथी से भी बड़ा था। वो हाथी जैसा दिखता था, और हाथी से भी बड़ा था। एक आइस एज मूवी है, उसमें भी मैमथ है, ठीक है? तो मैमथ मतलब बड़ा। ऐसी चीजों को रेफरेंस देने के लिए हम लोग मैमथ का यूज करते हैं जो बहुत बड़ा हो, ठीक है? तो बड़ा, ह्यूज, ह्यूज मतलब भी विशाल होता है, राइट? इजी, क्विक, क्विक मतलब जल्दी, इजी मतलब आसान, इंटेलिजेंट। दीज थ्री आर नॉट इवन रिलेवेंट, ठीक है? और ह्यूज इज आवर करेक्ट आंसर। इजी हो सकता है, लेकिन मैमथ का मतलब इजी नहीं होता है, हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है, राइट? द पुलिस डिपार्टमेंट इमेज वाज tarnished of the high profile murder. This word I use very much. Why you are tarnishing his image? उसकी इमेज को खराब क्यों कर रहे हो? कलंकित, धब्बा क्यों लगा रहे हो उस पे? Why you are tarnishing the piece of this classroom? I oftenly use this word. ठीक है? तो tarnish का मतलब होता है किसी चीज में धब्बा लगाना, दाग लगाना, उसको किसी चीज को खराब करना, राइट? तो द पुलिस डिपार्टमेंट इमेज वाज tarnished after the high profile murder. हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज खराब हो गई, तो टेंटेड, कलंकित हो गई, ठीक है? टेंटेड का मतलब होता है कलंकित, खराब करना, फाइन? तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। रिस्टोर्ड मतलब फिर से उसको वापस ले आना, एनहांस बढ़ा देना, और असाइन मतलब उसको एक टास्क देना, राइट? तो टेंटेड इज द करेक्ट फिट, करेक्ट सिनोनिम। उसका मतलब होता है कलंकित करना, खराब कर देना, ठीक है? That is all about English, everybody. So yeah, over to Sir. ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी इंग्लिश का पूरा आंसर के देखा। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ्स के लेकर के आएंगे हम लोग। जो है तब तक 5 मिनट फ्रेश होकर आ जाइए सारे। जय हिंद।